Hello, good evening everyone. In the previous lecture, we have covered systemic root, in which we have discussed the antral one, that is oral, rectal and sublingual, okay, and the parenteral or parenteral ones. That is injectional and non-injectional. In non-injectional we have seen transdermal and inhalational. And in injectional we have seen intramuscular, subcutaneous, intrathecal, intradermal, and now we are moving towards intravenous in this lecture. Okay, so starting with the intravenous route. So it is administration of drug. The drug is injected into the superficial vein. 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 ठीक है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है इंट्रावेनस रूट का एडमिनिस्ट्रेशन, ये बेसिकली 3 टाइप से होता है. ठीक है, सो आईवी एडमिनिस्टर्ड बाय 3 types, that is bolus, intravenous infusion, and the last one is slow IV. So slow IV form we use mannitol. In slow IV form we use mannitol. Okay, sorry, in slow IV form we use morphine. For myocardial infection. So in slow IV form we use morphine for myocardial infection. What is bolus? Bolus is single large dose of drug. That is administered slowly, single large dose of drug that is administered slowly or fast into the vein. Okay, और बोलस का एग्जाम्पल क्या है? बोलस का एग्जाम्पल है रेनिटिडीन.
बोलस का एग्जाम्पल क्या है? रेनिटिडीन इन ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर. PU stands for पेप्टिक अल्सर. सो रेनिटिडीन इन ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर. सो इसमें क्या होता है, सिंगल लार्ज डोज ऑफ जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करते हैं या तो स्लोली या तो फास्टली इनटू द वेन. इसका एग्जांपल क्या है? रेनिटिडीन इन ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर. और स्लो आईवी का एग्जांपल क्या है? मॉर्फिन इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन. In intravenous infusion we infuse basically mannitol. Okay, so we infuse mannitol for cerebral edema. We infuse mannitol for cerebral edema. And the IV infusion, it is also used for the conditions, it is also used in conditions of dehydration. Okay, so this is also used in conditions of dehydration. Okay, so ये हो गए 3 टाइप्स जिनके द्वारा IV रूट को एडमिनिस्टर, मतलब IV रूट्स एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं. पहला हो गया बोलस, दूसरा हो गया इंट्रावेनस इन्फ्यूजन और तीसरा हो गया स्लो IV, दैट इज BIS, बिस. ठीक है, अब बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड प्रिकॉशंस ऑफ द IV रूट. सबसे पहले बात करें एडवांटेजेस की. तो एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है सबसे पहले बायो अवेलेबिलिटी. कितनी रहती है? 100% रहती है IV रूट की. ठीक है, इसके बाद क्या है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड. लार्ज वॉल्यूम of drug is administered. ADM, large volume of drug is administered. Next one is hypertonic solution. Hypertonic solution can be infused. So hypertonic solution can be infused. ठीक है, नेक्स्ट हाईली इरिटेंट ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द IV route because it is going into the systemic circulation. ठीक है, highly irritant drug can be ADM administered. Highly irritant drug can be administered by the IV route. The next is as it is infused into the systemic circulation or the blood, so it is best used for the emergency purposes. It is best used for emergency purposes. It is best used for emergency purposes. So large volume of drug can be infused, hypertonic solution can be infused, highly irritant drug, emergency purpose. फिर ऐसी ड्रग्स जो कि जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको भी IV रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं. ड्रग्स विथ मतलब C. ठीक है, ड्रग्स विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ओके, और कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैन बी मेंटेन्ड. कांस्टेंट प्लाज्मा concentration can be maintained
ओके, सो ये सारी बातें हो गई। सबसे पहला जो बायो अवेलेबिलिटी रहती है वो 100% रहती है। क्यों? क्योंकि कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो ड्रग है वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसमें? ब्लड में। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इन्फ्यूजन which is used in conditions of dehydration. Hypertonic solution can be infused. Okay, highly irritant drug can be given because कोई टेस्ट ही नहीं रहेगा जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो फिर इमरजेंसी पर्पसेस में इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट रहता है, ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट रहता है वो क्या रहता है? फास्ट रहता है। ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट जो रहता है वो कैसा रहता है? फास्ट रहता है। ठीक है, इसीलिए इट इज बेस्ट यूज्ड फॉर इमरजेंसी पर्पस। और ड्रग विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड। और कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन पेशेंट्स विद डिहाइड्रेशन में मैनेज करेंगे किससे? इन्फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हो गए इंट्रावेनस रूट के। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ आईवी रूट। In disadvantages, the first disadvantages is it causes local injury leading to phlebitis। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? लोकल इंजुरी होती है जिसमें फ्लेबाइटिस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर एक बार ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर दिया, वंस एडमिनिस्टर्ड, इट कैन नॉट बी हॉल्टेड। तो उसका जो इफेक्ट है वो सीधे आ जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ होगा या उस पर्टिकुलर ड्रग का जहाँ पे भी एक्शन होगा वो हम लोग स्टॉप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो वंस एडमिनिस्टर्ड इट कैन नॉट बी हॉल्टेड। और क्या कॉज कर रहा है? फ्लेबाइटिस कॉज कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। फिर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए रेगुलर बेसिस पे किसी को अगर कोई भी पर्टिकुलर ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, सो वी प्रिफर बेसिकली ओरल रूट। ओके, सो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। डेपोट प्रिपरेशंस कैन नॉट बी यूज्ड। Depot preparations cannot be used. Okay. So ये सारे डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है, और असेप्टिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड। एक लास्ट नोट कर लीजिए, असेप्टिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड। हर बार जब भी एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा तो असेप्टिक कंडीशन चाहिए रहेगी। तो ये भी क्या हो गया? एक डिसएडवांटेज हो गया। सो लोकल टिश्यू इंजुरी, लोकल नर्व्स को इंजुरी, या अगर सही एडमिनिस्टर नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है? फ्लेबाइटिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो एक बार अगर एडमिनिस्टर कर दिया, सो इट्स effect cannot be halted. Self administration is not possible. Depot preparation cannot be used, and finally the aseptic conditions are required each time for the infusion of IV route. The next is the precautions. So अगर precautions की बात करें तो सबसे पहला check whether the tip is in the vein. सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ता है कि जो निडल की टिप है वो वेन के अंदर है कि नहीं है। सो इसको चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जब इन्फ्यूज करने वाले रहते हैं तो थोड़ा सा सिरिंज को क्या करना चाहिए? डिप्रेस करना चाहिए। सो व्हेन वी डिप्रेस द सिरिंज तो उसमें क्या रहता है? जो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो ब्लड है अगर वो वेन के अंदर रहती है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो आता है वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसको एडमिनिस्टर कर देना चाहिए। ओके, एंड द नेक्स्ट इज it is infused slowly.
स्लोली, ये क्या है, यूजुअली स्लोली एडमिनिस्टर करना चाहिए ड्रग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आईवी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ये हो गए रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द special routes of drug administration. What? Special routes of administration. Special routes of administration. In special routes of administration we have a jingle or mnemonic LOCP-MD. ओके, क्या है एग्जाम निमोनिक हमारा? LOC पे MD, ठीक है, LOC पे MD, ठीक है। सो L स्टैंड्स फॉर लाइपोसोम, ठीक है, लाइपोसोम। सो लाइपोसोम क्या होता है? बेसिकली सबसे पहली बात करें तो ये जो भी हमारी स्पेशल रूट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जो भी ड्रग की, सो उनको बेसिकली क्यों डेवलप किया गया है? सो इट इज basically developed for T, I and P. So it is basically developed for the three things, that is TIP. TIP means targeted delivery. Okay, the next is improved patients compliance, and the last one is prolonged duration. सो ये बेसिकली थ्री थिंग्स हो गई जिसके लिए ये जो स्पेशल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इनको डेवलप किया गया। क्या क्या है ये सब? एक तो टारगेटेड डिलीवरी, जो भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे ड्रग हमको चाहिए वहां पे टारगेटेड डिलीवरी रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग जो हो गई वो क्या हो गया? इंप्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस, एंड द लास्ट थिंग इज द प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन। सो सबसे पहली बात करें तो लाइपोसोम की। सो लाइपोसोम जो रहता है वो बेसिकली क्या होता है? स्मॉल वेजाइकल होता है, ठीक है। लाइपोसोम बेसिकली क्या होता है? स्मॉल वेजाइकल होता है, जो कि किस चीज से बना रहता है? फॉस्फोलिपिड से। किससे? फॉस्फोलिपिड से बना रहता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ड्रग रहती है वो इनकॉर्पोरेटेड रहती है। सो इट इज बेसिकली अ minute vesicle that is made of phospholipid, in which drug is incorporated, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइपोसोम, ठीक है। और ये बेसिकली कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करता है? ये फुलफिल करता है किसको? टारगेटेड डिलीवरी। किसको? वो जो हमने पढ़ा था ना ऊपर, T, I and P। सो लाइपोसोम वाला जो रहता है वो टारगेटेड डिलीवरी को फुलफिल करता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर टारगेटेड डिलीवरी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइपोसोमल फॉर्म्यूलेशन फॉर एम्फोटेरिसिन B. So liposomal formulation for amphotericin B is the example. ये क्या होता है? बेसिकली स्मॉल वेजाइकल होता है। इट इज माइन्यूट वेजाइकल दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसके अंदर जो ड्रग रहती है उसको क्या करते हैं? एडमिनिस्टर और इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ताकि क्या हो?
एक पर्टिकुलर साइट पे, जहां पे भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब साइट ऑफ नीड है उस पर्टिकुलर ड्रग का, सो वहां पे क्या हो, टारगेटेड डिलीवरी हो। ठीक है, सो ये पहला हो गया हमारा लाइपोसोम। ओके, द नेक्स्ट इज द ऑक्यूसर्ट। ऑक्यूसर्ट, सो ऑक्यूसर्ट क्या होता है? It is basically placed beneath, it is basically placed beneath the lower eyelid. It is placed beneath the lower eyelid. So ये हो गया ऑक्यूसर्ट। और ये कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करता है? ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को फुलफिल करता है। किसको? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को फुलफिल करता है। ठीक है, कितना टाइम रहता है इसका? वीक्स। कितने टाइम तक करता है? वीक्स तक जो हमारा ड्रग है वो एडमिनिस्टर्ड होता रहेगा। तो ये किस कंडीशन में? इट इज यूज्ड इन कंडीशन ऑफ, इट इज यूज्ड इन कंडीशन ऑफ ग्लाकोमा। इट इज यूज्ड फॉर द कंडीशन ऑफ ग्लाकोमा। ग्लाकोमा, ठीक है, ये टॉपिक आगे हम लोग एड्रेनर्जिक ड्रग में पढ़ेंगे। सो ग्लाकोमा क्या होता है बेसिकली? ग्लाकोमा में क्या होता है? जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। आईओपी जो है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। किस किस वजह से इंक्रीज होता है? सो फर्स्ट जो वो रहता है, तो इसमें क्या हो जाता है? या तो सिक्रीशन इंक्रीज हो गया हो, पर्टिकुलर जो फ्लूइड रहता है उसमें उसका सिक्रीशन इंक्रीज हो गया हो, और या तो सेकेंड थिंग कि उसका ड्रेनेज बंद हो गया हो, या उसका एक्सक्रीशन या ड्रेनेज कहा जाए तो ड्रेनेज जो है प्रॉपर वर्ड वो बंद हो गया हो या क्लोज हो गया हो। सो ये रहता है ग्लाकोमा की कंडीशन में रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। सो इस कंडीशन को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक तो सिक्रीशन को कम करते हैं। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि सिक्रीशन को कम करती हैं, ठीक है, और कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो ड्रेनेज को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, सो फिर फाइनली क्या होता है इसमें कि कंडीशन एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, सो इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? पाइलोकार्पिन। एग्जाम्पल पाइलोकार्पिन। Pilocarpine is used as a occlusert for long duration of action, that is it administer मतलब जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसमें वीक्स तक जो ड्रग रहेगी वो स्प्रेड होती रहेगी। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट सी की, दैट इज कंप्यूटराइज्ड miniature computerized miniature pumps, computerized miniature pumps। सो इसका एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन, ठीक है। फिर द नेक्स्ट थिंग इज LOC। ठीक है, अब बात करेंगे पे इन द सेंस पी। P stands for प्रोजेस्टासर्ट। P stands for प्रोजेस्टासर्ट। और प्रोजेस्टासर्ट क्या होता है बेसिकली? इट इज एन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इट इज एन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इट इज इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और प्रोजेस्टासर्ट क्या करता है बेसिकली? ये कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा? ये करेगा प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को। ठीक है, सो इट बेसिकली फुलफिल द प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टासर्ट जो रहता है वो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को 1 साल तक मतलब अप्रोक्सीमेटली फॉर द 1 ईयर मेंटेन्ड रखता है। ठीक है, सो
for the whole year. It releases progesterone. Okay, so ये हो गया progestasert. Now the next is M and D. So M stands here for monoclonal antibody. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या होता है? इट इज इम्यूनोग्लोबिन. इट इज बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन दैट इज produced by cell culture to react with specific antigens. और इसका मेन रोल या इसका एग्जांपल की बात करें तो ये क्या हो गया? एंटी कैंसरस ड्रग. इसका एग्जांपल क्या हो गया? एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है. और इट बेसिकली फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ टारगेटेड डिलीवरी. Okay, so the last one is drug eluting stents, ठीक है. सो इसका एग्जाम्पल क्या है? पैक्सिलिटैक्सल स्टेंट्स. और ये किस में बेसिकली यूज होते हैं? कोरोनरी एंजियोग्राफी में. किस में यूज होते हैं? बेसिकली कोरोनरी एंजियोग्राफी में यूज होते हैं, ठीक है. सो ये हमारा हो गया क्या? स्पेशल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा? LOC पे MD, L stands for liposome, O stands for OcuSert, C stands for computerized miniature pumps, progestasert, monoclonal antibody, और D stands for drug eluting stents. Okay. Now moving on towards the next topic, that is फार्माकोकाइनेटिक्स. ओके, सो फार्माको मतलब फार्मेकॉन मतलब ड्रग, और काइनेटिक्स मतलब काइनेसिस, ठीक है. काइनेसिस इन द सेंस मूवमेंट. सो मैंने बताया था D फॉर फार्मेको डायनेमिक्स मतलब D इन द सेंस ड्रग डज टू द बॉडी. सो यहाँ क्या है? काइनेटिक्स मतलब बॉडी डज टू द ड्रग. सो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ये चीज हम किस में पढ़ते हैं? फार्मेकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है. और बेसिकली फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा. फिर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन. फिर क्या होगा? मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज. और फिर फाइनली क्या होगा? एक्सक्रीशन, ठीक है. सो इसको और एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, दैट इज ADME, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. सो इसमें जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग.
we will first study the absorption of the drug. Okay. एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है. सो अब एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है बेसिकली, सपोज दिस इज आवर माउथ, ओके, ये स्टमक है, ठीक है, और यहां तक गया, ठीक है. और ये क्या है, ब्लड वेसल है या नियर बाय कैपिलरीज है, ठीक है, या ब्लड वेसल है, ठीक है. सो फॉर एन एग्जांपल अब क्या हुआ, ये ड्रग है, ठीक है. ये ड्रग को हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. सो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या हुआ, ड्रग धीरे धीरे सिस्टम में गई. हमारे सिस्टम में जाने के बाद क्या होता है कि ड्रग फाइनली क्या होती है, मूव करती है किधर, ब्लड वेसल में, ठीक है. ये मैं 2 पॉइंट्स बना दे रहा हूं, इससे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अभी आपको, ठीक है. सो ड्रग बेसिकली क्या हुई, इन 2 मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ चली जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में या तो हमारी ब्लड वेसल में चली जाती है, ठीक है. सो क्या हुआ यहाँ, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है पूरा एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म. तो यहाँ क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट किसका, ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग, कहाँ से कहाँ, from the site of administration into the blood or the systemic circulation. So movement of drug from site of administration to the blood. Movement of drug from site of administration to the into the blood. ठीक है. अब इसमें भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो रहता है, ये हमारा बेसिकली जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ अभी, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो डेफिनेशन तो ये हो गई, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड. अब बात करेंगे उसके फैक्टर्स पे जिस पे एब्जॉर्प्शन जो रहता है हमारा डिपेंड करता है बेसिकली. सो फैक्टर्स की बात करें तो बेसिकली कितने फैक्टर्स होते हैं, 8 फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये चीज डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन. सो सबसे पहले इसमें से कौन सा है, सबसे पहला फैक्टर है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग. सबसे पहला फैक्टर है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, जिस पे एब्जॉर्प्शन हमारा डिपेंड करता है, ठीक है. फर्दर इसके अंदर भी कुछ सब हेडिंग्स हैं तो मैं अभी आगे एक्सपेंड करके बताऊंगा. सेकेंड वन इज द पीएच एंड आयोनाइजेशन. जिस पे डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन. द थर्ड वन इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस पे भी एब्जॉर्प्शन हमारा डिपेंड करता है. ये 3 फैक्टर हो गए. नेक्स्ट वन इज द फूड, जिस पे एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है. नेक्स्ट फूड का मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ फूड. अगर फूड प्रेजेंट है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. सेम अदर ड्रग, अगर कोई अदर ड्रग एडमिनिस्टर्ड है सो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, सो प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, सो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है. तो ये हो गए 5, ठीक है. फिर छठवां क्या है, फार्माकोजेनेटिक फैक्टर. नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
disease. Next is the gastrointestinal disease. Next is the area of absorbing, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, absorbing, ठीक है, absorbing surface, area of the absorbing surface. So कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 and 8 फैक्टर्स. सो इन सारे फैक्टर्स पे हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है. ठीक है, अब बात करेंगे एक एक फैक्टर की कि किस फैक्टर से एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है या किस फैक्टर से जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो रहा है फर्दर. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फार्माकोजेनेटिक फैक्टर की बात करते हैं. किसकी? सॉरी, फिजियोकेमिकल फैक्टर ऑफ द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. किसकी? फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, इसकी बात करते हैं सबसे पहले. तो इसमें भी जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है? फिजिकल स्टेट. क्या है? फिजिकल स्टेट. सो फिजिकल स्टेट बेसिकली क्या होता है कि सपोज अगर कोई ड्रग लिक्विड फॉर्म में और अगर कोई ड्रग सॉलिड फॉर्म में, सो जो लिक्विड फॉर्म वाली ड्रग है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी देन द सॉलिड फॉर्म. ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म वाली ड्रग है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी देन द सॉलिड फॉर्म. ऐसा क्यों? क्योंकि जो सॉलिड फॉर्म वाली ड्रग रहती है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगी? सॉलिड फॉर्म वाली इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इन द एक्वस सॉल्यूशन. इट इज फर्स्ट डिजोल्व इन द एक्वस सॉल्यूशन और वो भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी. सो इस कन्वर्जन में टाइम लगेगा. उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा. और यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो रहा है. इसीलिए लिक्विड फॉर्म वाली जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन क्या है? फास्ट है. ठीक है, सो दिस वन इज द फिजिकल स्टेट. Another thing is the unionized and lipid soluble drug move faster. Unionized and lipid soluble drug जो रहती है वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, या उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ज्यादा होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन, वो क्या करती है? लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को या अनआयोनाइज्ड आयंस को इजीली क्रॉस करने देती है. अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं. देखिए बेसिकली क्या होता है? दिस इज H2O. ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन. ठीक है, और सपोज कि ये HX हमारा ड्रग का कंपोजिशन है. ठीक है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू बेसिकली H प्लस एंड X माइनस आयंस. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बेसिकली इधर ये क्या है? अनआयोनाइज्ड है. ठीक है, अनआयोनाइज्ड है मतलब ये क्या है? लिपिड सॉल्युबल. और ये क्या है? आयोनाइज्ड है. सो ये कैसा है? वाटर सॉल्युबल और अनआयोनाइज्ड. ठीक है, अनआयोनाइज्ड. ठीक है, अनआयोनाइज्ड. तो ये बेटर एब्जॉर्ब होगी. ठीक है, इन कंपैरिजन टू द आयोनाइज्ड फॉर्म. ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड क्राइटेरिया. थर्ड क्राइटेरिया की बात करें तो मीडियम की बात करें. ठीक है, तो थर्ड क्राइटेरिया में क्या आ गया? मीडियम आ गया. सो मीडियम की बात करें, सो इफ मीडियम is same, if medium is same, then drug crosses easily. ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज ये सेम जो सेटअप है, ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? सपोज ये एक सर्कल है. ठीक है, सॉरी ये एक पॉइंट है और ये एक क्रॉस है. ठीक है, सो ये जो पॉइंट है मैं इसको यहाँ बेसिकली बना दे रहा हूँ. ये जो पॉइंट है ये क्या है? एस्पिरिन है. और एस्पिरिन कैसी होती है? एस्पिरिन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक रहता है. ठीक है, और ये जो क्रॉस है ये बेसिकली क्या है? मॉर्फिन है.
मॉर्फिन। मॉर्फिन का नेचर बेसिकली कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। सो सपोज क्या हुआ कि स्टमक का जो पीएच रहता है वो कैसा रहता है, एसिडिक, और स्टमक का जो मीडियम रहेगा वो कैसा रहेगा, एसिडिक। सो बेसिकली स्टमक में एस्पिरिन एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी एट द एसिडिक मीडियम, ठीक है। और जो मॉर्फिन रहेगी वो बेसिकली कहाँ से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन से। सो उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ से ज़्यादा होगा। सो ये क्या है, ये बेसिकली ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली एवरी ड्रग absorb from small intestine, basically every drug absorb from small intestine, ठीक है। सो ये हो गया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जो मीडियम रहता है उस पे क्या होगा। द नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल। एक बार बेसिकली, हाँ ठीक है, नेक्स्ट इज द पार्टिकल साइज, ओके। सो पार्टिकल साइज की बात करें बेसिकली, सो जो स्मॉल पार्टिकल्स जो रहते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं बेसिकली देन द लार्ज पार्टिकल्स। क्यों ऐसा, क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया रहता है वो ज़्यादा रहता है। जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं उनका जो सरफेस एरिया रहता है वो कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स फॉर द एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, सो एस्पिरिन और डिजॉक्सिन, ठीक है, डिजॉक्सिन, ये बेसिकली कैसी होती हैं, स्मॉल ड्रग्स होती हैं, स्मॉल ड्रग्स। सो इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गट, बट द लार्ज साइज की बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स आती हैं, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, हेलमिंथिक ड्रग्स जो रहती हैं वो बेसिकली कैसा रहता है, इनका जो साइज रहता है वो लार्ज साइज की रहती हैं। ये कैसी रहती हैं, लार्ज साइज की रहती हैं। सो ये एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, इट इज नॉट एब्जॉर्ब। सो इट इज यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द गट, इट इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द गट, ठीक है। सो पार्टिकल साइज की बात करें, स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, ठीक है। सो एस्पिरिन और डिजॉक्सिन जो हमारी ड्रग्स हैं वो स्मॉल हैं, ठीक है, साइज में। सो इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट, बट जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग है वो कैसी है, लार्ज है। सो ये एब्जॉर्ब नहीं होती है, और ये कैसा काम करती है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ द गट का काम करती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल साइज के बाद दो और चीजें हैं इसमें, एक तो है डिसोल्यूशन टाइम, ठीक है। सो डिसोल्यूशन टाइम क्या रहता है, एक तो डिसोल्यूशन टाइम और एक डिसइंटीग्रेशन टाइम। सबसे पहली बात करें तो डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है। डिसइंटीग्रेशन टाइम वो होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लार्ज साइज की ड्रग है, सो वो स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। सो इट इज द टाइम टेकन बाय द ड्रग टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल, टाइम टेकन बाय सब्सटेंस टू ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन टाइम। और आपको पता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, बेटर एब्जॉर्ब रहते हैं। सो जितना जल्दी जो पर्टिकुलर लार्ज साइज की ड्रग है वो अगर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी तो वो उतना जल्दी एब्जॉर्ब होगी। सो जितना कम डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही जल्दी होगा, या एब्जॉर्प्शन उतना ही जल्दी होगा। सेम क्या होता है, डिसोल्यूशन टाइम। सो जितने जल्दी वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट होगी, सो उतने जल्दी वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगी, डिसॉल्व होगी। सो टाइम टेकन बाय द
ड्रग टू डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और ये टाइम जितना कम होगा, लेस dt, मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए फिजियो केमिकल फैक्टर्स ऑफ द ड्रग। ओके, अब नेक्स्ट जो फैक्टर आने वाला है ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमने देखा था बेसिकली जो IM रूट था, सॉरी IV जो रूट था, उसमें क्या हो रहा था, जो ब्लड है जो ड्रग है वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है। सो IV एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब्ड। उसके बाद क्या होता है, IM रहता है और फिर क्या होता है, ओरल रहता है। ठीक है, सो बेसिकली ये हो गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन जनरल ही है, बीच में और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स आते हैं, बट IV, IM एंड ओरल। ठीक है, सो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, pH and ionization, pH and ionization of the drug। ओके, सो बात करें pH और आयोनाइजेशन की, तो सपोज इसको हम लोगों को मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा। तो इसमें क्या रहता है, सपोज आपको पता होगा pKa के बारे में, ये क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, pH at which 50% of the drug is ionized and ionized, okay, and 50% of the drug is अनआयोनाइज्ड। ये हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि pH और आयोनाइजेशन पे जो हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो कैसे डिपेंड करेगा। तो ये इसमें क्या होता है, एक वैल्यू आती है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की pKa, pH at which the 50% of the drug is ionized and 50% of the drug is unionized। ठीक है, तो ये pKa वैल्यू हो गया। ठीक है, अब सपोज क्या हुआ कि जो हमने ड्रग लिया है, जैसे कि एस्पिरिन का हमने एग्जांपल देखा था, तो एस्पिरिन क्या थी हमारी, एस्पिरिन का नेचर कैसा था, नेचर ऑफ द ड्रग, और नेचर ऑफ एस्पिरिन इज एसिडिक। ठीक है, एसिडिक, और इसके लिए pKa वैल्यू क्या दी है, 4 दी है सपोज। सो 4 वो वैल्यू है जिसपे नंबर ऑफ आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड आयंस। ठीक है, अनआयोनाइज से मतलब क्या है, लिपिड सॉल्यूबल। ठीक है, और आयोनाइज से मतलब क्या है, वाटर सॉल्यूबल। तो लिपिड सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल जो रहेंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सपोज ये क्या हो गया, हमारा pH हो गया। ठीक है, और ड्रग हमारी कैसी है, एसिडिक है, लेकिन इस पर्टिकुलर pH पे 4 pH पे क्या हो रहा है, 50 यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल वैल्यूज ऑफ, देयर इज इक्वल वैल्यूज ऑफ आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड आयंस। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो गया, pH। अब सपोज 5 अगर pH रहता है तो यहाँ लिपिड सॉल्यूबल और अनआयोनाइज्ड फॉर्म, लिपिड सॉल्यूबल और अनआयोनाइज्ड फॉर्म, एंड वाटर सॉल्यूबल और आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये मैं लिपिड सॉल्यूबल और अनआयोनाइज्ड फॉर्म ही क्यों कह रहा हूँ, और ये वाटर सॉल्यूबल और आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये बेसिकली मैं अब इसमें समझ में आ जाएगा आपको क्या हो रहा है बेसिकली, कि ये 5 अगर हमने pH लिया है, सो pKa मतलब ये ऐसा pH है जिसपे ये पर्टिकुलर जो ड्रग है जिसका नेचर एसिडिक है, ये हाफ हो जा रही है, मतलब अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड जो है वो इक्वल है। तो पहले इसी को लिख देते हैं, जो 4 है उस पर क्या होता है 50%। ओके, अब क्या हुआ, pH को हमने डिक्रीज किया, 5 मतलब सॉरी इंक्रीज किया। ठीक है, तो ये इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, बेसिक हो गया। सो अगर बेसिक होगा तो ड्रग हमारी कैसी है, एसिडिक। और एसिड और बेस मैंने क्या बताया था, मीडियम अगर सेम
सेम होगा कि अगर मीडियम एसिडिक रहता तो ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब रहती, अच्छे से एब्जॉर्ब होती। अच्छे से एब्जॉर्ब होती मतलब क्या? अगर मीडियम सेम रहता तो ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब होती। अच्छे से एब्जॉर्ब होती मतलब क्या? वो लिपिड सॉल्युबल होती। लिपिड सॉल्युबल मतलब क्या? वो आयोनाइज्ड नहीं होती, अनआयोनाइज्ड रहती, तभी वो आराम से क्रॉस कर जाती। सिमिलरली यहाँ क्या हो रहा है, जो नेचर है एसिडिक, यहाँ क्या हो गया, लेकिन मीडियम का नेचर कैसा हो गया? बेसिक हो गया, तो वो मोर क्या होगी? वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल मतलब 90% वाटर सॉल्युबल और 10% लिपिड सॉल्युबल, दैट इज अनआयोनाइज्ड फॉर्म। सो यहाँ क्या होगा, अगर मीडियम या मतलब अगर पीएच क्या हुआ? बेसिक हो गया, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा। ये समझ में आया? पीएच एंड आयोनाइजेशन। ठीक है, अब बेसिकली क्या किया, अगर 3 कर दिया पीएच, तो 3 अगर किया तो क्या हो गया, ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक हो गया। अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, नेचर ऑफ द मीडियम सेम, एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर ज्यादा एसिडिक हो गया तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। सो 90% विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड 10% विल बी रिमेन लेफ्ट। ठीक है, अब बात करें अगर, तो ऐसे ही चलता जाएगा सेम। ठीक है, सो अगर पीएच क्या करते हैं? 2 करते हैं। ठीक है, सो 99% क्या होगी? 2 कर दिया, सो 99% क्या होगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोर एसिडिक हो गया है पीएच। ठीक है, और 1% जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। सिमिलरली क्या हुआ, अगर 6 कर दिया पीएच या 1 कर दिया, ठीक है, सो 99.9% विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड 0.1% विल रिमेन अनएब्जॉर्ब्ड। ठीक है, रिमेन अनएब्जॉर्ब्ड, यानी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। इसमें एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, इसमें नॉट एब्जॉर्ब्ड। ओके, नॉट एब्जॉर्ब्ड, इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर क्या हुआ, पीएच हम लोग बेसिक कर रहे हैं मोर, तो 6 मतलब क्या होगा? इट विल only 1% of the drug will absorb and remaining 99% will be left behind. So this is the another factor which is determining the absorption. Okay, so pH and ionization. Now the next factor is presence of food. Now the next factor is presence of food. Presence of food. So अगर बेसिकली फूड प्रेजेंट है, ठीक है, सो इसमें से दो चीजें हो सकती हैं। बेसिकली ये फूड को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ फूड। सो इसमें क्या हो सकती है? 2 चीजें हो सकती है। एक तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, और दूसरा क्या होगा? इंक्रीज होगा एब्जॉर्प्शन। डिक्रीज किनका होगा? अगर फूड प्रेजेंट है, सो L एंड R। ठीक है, रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिसिन एंड एल डोपा का जो एब्जॉर्प्शन रहता है वो फूड के प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सो टेट्रासाइक्लिन जो है, अपनी जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन जो है वो, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्या है हमारा? अगर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है फूड के प्रेजेंस में, सो ऐसी अगर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि अगर फैटी मील ले ली हमने, ठीक है, फैटी मील ले ली, ठीक है, सो उसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन जो रहता है GA एंड R का एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? ग्रीजोफल्विन, अल्बेंडाजोल एंड रिफैम्पिसिन। अगर फैटी डाइट थोड़ी देर पहले ली है तो इन तीनों ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो ये डिक्रीज एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है और ये इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल इन प्रेजेंस ऑफ फूड। ठीक है, ये हमारा हो गया 4th फैक्टर। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। सो प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग की बात करें अगर, सो सबसे पहले क्या होता है? जो इसमें भी सेम चीज, अगर ड्रग है प्रेजेंट तो या तो इंक्रीज होगा और या तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज किसका होगा? फॉर एग्जांपल अगर एंटासिड ली है
तो टेट्रासाइक्लिन का उसके इफेक्ट में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी लिया है, विटामिन सी, सो इट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, इट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक है। विटामिन सी इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड एंटासिड्स डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। सो ये प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। नेक्स्ट इज द फार्माकोजेनेटिक फैक्टर, ठीक है। क्या, फार्माकोजेनेटिक फैक्टर, फार्माकोजेनेटिक फैक्टर। सो फार्माकोजेनेटिक फैक्टर की अगर बात करते हैं, सो पेशेंट्स, सो those patients having pernicious anemia, those patients having pernicious anemia, तो उनके अंदर क्या होता है, जो विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ठीक है। फार्माकोजेनेटिक फैक्टर। द नेक्स्ट इज एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस की अगर बात करें, सो नॉर्मली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, और कैसा होता है, नॉर्मल इक्वल रहेगा, लेकिन पेशेंट्स इक्वल रहेगा, लेकिन जिन पेशेंट्स के अंदर क्या हो रहता है, रिससिटेशन होता है, ऑफ गट का कोई पर्टिकुलर पार्ट अगर निकाल लिया गया, ठीक है, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि जो पर्टिकुलर टाइम मिल रहा था ड्रग के लिए, ड्रग को जो एब्जॉर्ब करने का भी टाइम होता है वो कम मिलेगा, क्योंकि पर्टिकुलर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कुछ जगह से ही होगा, रिसेप्टर से होगा या कहीं से होगा, तो जो एब्जॉर्प्शन होगा उसका भी रिसेप्टर का एक सैचुरेशन लेवल रहता है, भले ही ड्रग वहाँ प्रेजेंट है। तो क्या होगा, अगर धीरे धीरे ड्रग जा रही है, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे ड्रग जा रही है, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती जा रही है, एब्जॉर्ब होती जा रही है, लेकिन सडनली अगर मान लीजिए स्टमक निकाल दिया, पर्टिकुलरली स्टमक किसी का रिससिटेट कर दिया, तो क्या होगा, अचानक से ड्रग यहाँ से साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सीधे क्या हुआ, ड्रग यहाँ आ गई। अब यहाँ आ गई तो क्या होगा, सैचुरेशन लेवल पहुंच जाएगा, जितने भी रिसेप्टर्स हैं, कि 4 अगर ड्रग एब्जॉर्ब होनी है तो 4 ही ड्रग एब्जॉर्ब होगी ना, अगर रिसेप्टर 4 ड्रग के लिए तो 8 थोड़ी हो जाएगी, उसका भी एक पर्टिकुलर गेटवे पैसेज रहता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 ड्रग अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो 4 ही ड्रग होगी, तो बाकी ड्रग क्या होगी, मूव आउट कर जाएगी। लेकिन अगर यहाँ धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी तो पहले 4 आई, 4 एब्जॉर्ब हुई, फिर अगली 4 आई, फिर अगली 4 एब्जॉर्ब हुई। सो बेसिकली क्या होगा, इनके अंदर एब्जॉर्प्शन का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। एंड द लास्ट टॉपिक और लास्ट फैक्टर इज gastrointestinal diseases, gastrointestinal disease। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज की बात करें तो कुछ पेशेंट्स को क्या रहता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस रहता है। क्या होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, एंटेराइटिस। तो इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो बॉवेल है, बॉवेल जो मूवमेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब अगर बॉवेल इंक्रीज होगा तो मैंने बेसिकली आपको ये बताया था कि बॉवेल अगर इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन का टाइम कम मिल पाएगा, उतने रिसेप्टर्स नहीं है प्रेजेंट कि मतलब एक बार में सारी ड्रग के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर दें, पहले 4 फिर 4 फिर 4 ऐसे करेंगे, ठीक है। सो अगर बॉवेल तेज हो गया तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो पेशेंट विद गैस्ट्रोएंटेराइटिस फेसेस डिफिकल्टी ऑफ डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्लोरहाइड्रिया। क्लोरहाइड्रिया होगा। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, HCl
डिक्रीज हो जाता है। सो इसमें बेसिकली अक्लोर मतलब HCl का सिक्रीशन ही बंद हो जाता है एक तरीके से। सो इसमें आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आयरन का एब्जॉर्प्शन जो डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन जो है हमारी वो क्या है, वो है CCF, दैट इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। सो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या रहता है, गैस्ट्रिक इडेमा होता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। सो ये सारे फैक्टर्स थे जिन पे हमारा एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा एब्जॉर्प्शन डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन।